हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर के पर्पसेस और कुछ उसके टाइप्स के बारे में। हम सभी सॉफ्टवेयर से अवेयर हैं, सभी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स में, कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में। नंबर ऑफ़ सॉफ्टवेयर वी आर यूजिंग लाइक WhatsApp chat, Instagram, Facebook, Play Store, Google Chrome. So there are number of applications we are using. But if we are student of computer science, so हमें सीखना होगा कि एक सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप करें। एप्लीकेशन को यूज़ करने के साथ साथ हमें सॉफ्टवेयर को डेवलप करना भी सीखना होगा। तो आज मैं सॉफ्टवेयर की कुछ फंडामेंटल टर्म्स को डिस्कस करूँगी आपके साथ। सबसे पहले तो ये कि सॉफ्टवेयर आखिर है क्या। So software is basically a collection of data and instructions, or we can say it's a set of programs that tells the computer how to work. It means it's a set of programs which is used to operate the computer and execute some specific tasks. So we have classified the software into three categories here. First one is system software. Another is system utility software, and next is application software. So system software is a software that provide the interface between the operating system or user. Yeah, we can say it provide the interaction between the system and the user. So we have classified further system software into three parts. First one is operating system, another is device driver, and next one is language translator. ऑपरेटिंग सिस्टम ही सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है क्योंकि इट ऑल्सो प्रोवाइड द इंट्रैक्शन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर सिस्टम. एंड व्हाट डज द डिवाइस ड्राइवर? It provide the interaction between hardware and OS, operating system. And language translator, what is it? It is a translator which translate the source code into the machine code. So there are number of translator that is written here. First one is compiler, another is interpreter, or third one is assembler. We will discuss further in details. So एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एंड द कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर. जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर मीन्स दो सॉफ्टवेयर which those applications which we are using in general terms that perform some task, like आपका MS Office, Mozilla Firefox, Google Chrome, web browsers are also a general purpose software, and customized software are those that is used for a specific purpose. So let's discuss about the system software first. The first type of system software is operating system. So as I tell you, what is operating system? It is an interface between user and computer system, and it manage all the resources such as memory, CPU, printer, and other hardware and software on the computer. So without operating system, computer system is nothing. We cannot interact with the computer system without operating system. So operating system plays a very significant role in the computer system so that user can interact with that computer system. Now there are some examples of operating system, that is Linux, Windows, Mac operating system, Android, Fedora, Ubuntu, etc. So operating system also provides various services to other computer software.
The first service is security service. Security service means we can encrypt the software, we can encrypt the files, or it also provide the protection services for protecting our सॉफ्टवेयर. प्रोटेक्शन सर्विसेज जैसे एक फायरवॉल अगर हम ऑन कर दें तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को या फिर उसमें जो इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर हैं उनको वेरियस वायरस से बचा सकते हैं. वायरस लाइक ट्रोजन हॉर्स, ज़ॉम्बी, वॉर्म, malfunction, spam and many more viruses are there which corrupt your operating system or या फिर which corrupt your software. So operating system basically provide security service to its software, and it's also manage the file and directories. Means it organize the files into a systematic manner so that we can search easily. If we are searching a file, we can arrange the files in a sorting manner, or we can arrange, if we are searching the file by size, then it can also be detected. So operating system manage all the files and directories. It controls input and output processing to and from IO devices. Means IO devices के थ्रू जो भी इनपुट दिया जाता है या आउटपुट गेन किया जाता है मॉनिटर पे, वो सारी फंक्शनिंग को ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है. थर्ड सर्विस है एरर डिटेक्शन. इट ऑल्सो डिटेक्ट एरर्स. जैसे सपोज़ यू आर एक्सेसिंग PDF फाइल and Adobe Reader is not installed in your computer system. Not installed. So that file cannot be opened just because of Adobe Reader is not installed. So operating system generate that message to the users that this file cannot be opened. So these type of error can be detected by operating system. So another service that is provided by the operating system, that is रिसोर्स एलोकेशन. रिसोर्स एलोकेशन का क्या मतलब है? OS allocate the resources when an program need them. जब भी प्रोग्राम को रिसोर्स की ज़रूरत होती है तो OS उस प्रोग्राम को उस रिसोर्स को एलोकेट कर देता है. और जब प्रोग्राम टर्मिनेट करता है अपना प्रोसेस तो वापस से रिसोर्स डी एलोकेट हो जाता है, यानी कि प्रोग्राम रिसोर्स को रिलीज़ कर देता है. प्रोग्राम रिलीज्ड द रिसोर्सेस. सो फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रिंट प्रोग्राम है. अब इस प्रोग्राम को ज़रूरत किसकी पड़ेगी? प्रिंटर. That is also a resource. So operating system allocate this printer resources to print program, and when print program use this resource and terminate its task, then it will release this printer resource. So इस तरीके से resource allocation service operating system provide करता है. So another service that is provided by the OS
प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है? ओएस ही डिसाइड करता है कि सीपीयू को कौन सा प्रोग्राम एलोकेट करना है। सपोज़ 3 प्रोसेस हैं P1, P2, P3 एंड ये सीपीयू के थ्रू एग्जीक्यूट होने हैं। अब किस प्रायोरिटी में एग्जीक्यूट होंगे ये ओएस डिसाइड करेगा। तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है। नाउ देयर आर सम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर which is used for maintenance of the computer. So these software used for maintenance or enhance the performance of the computer systems. So some utility software are shipped with the operating system. कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में ही इंस्टॉल होते हैं और कुछ हमें अलग से इंस्टॉल करने पड़ते हैं सिस्टम की परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए। तो वो कौन से सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉल होते हैं? पहला यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। सो डिस्क फ्रेगमेंटेशन टूल क्या करता है? बेसिकली जो भी फ्रेगमेंटेड डेटा है उसको डीफ्रेगमेंट करता है। फ्रेगमेंटेड डेटा मतलब सपोज़ ये कंप्यूटर की मेमोरी है जो कि मल्टीपल पार्टीशंस में डिवाइडेड है। अब यहाँ पे जो डेटा या फाइल स्टोर होती हैं वो नॉन कॉन्टिग्यूअस मैनर में स्टोर होती हैं। नॉन कॉन्टिग्यूअस, सपोज़ एक फ़ाइल का पार्ट हमारा इस पार्टीशन में पड़ा है, उसी फाइल का एक फ्रेगमेंट यहाँ पड़ा है और इसी फाइल का एक फ्रेगमेंट यहाँ पड़ा है एंड सो ऑन। सो देयर आर 4 फ्रेगमेंट्स ऑफ अ वन फाइल। तो अब डीफ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि जब भी फाइल को एक्सेस करा जाता है तो ये जो अलग अलग जगहों पे फ्रेगमेंट पड़े हैं तो ये एक ही जगह पे स्टोर हो जाते हैं। ABCD ये स्टोरेज डिवाइस में एक ही जगह पे स्टोर हो जाते हैं डीफ्रेगमेंटेशन टूल के थ्रू। तो इस तरीके से एक फ़ाइल को कम्प्लीटली एक्सेस कर लिया जाता है। सो अनदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज़ फॉर्मेटिंग यूटिलिटी। फॉर्मेटिंग यूटिलिटी का क्या मतलब है कि ये बेसिकली ऐसी यूटिलिटी प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर सकते हैं या एक पर्टिकुलर ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हैं या फोल्डर को फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट का मतलब यू कैन इरेज द डेटा। अनदर यूटिलिटी इज़ सिस्टम रिस्टोर यूटिलिटी। इस रिस्टोर यूटिलिटी का क्या मतलब है? जब भी आप कोई फ़ाइल डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में पहुंचती है और रिसाइकिल बिन में वो स्टोर हो जाती है। लेकिन जब वापस से आप उसी फाइल को यूज़ करना चाहते हैं तो आप रिसाइकिल बिन में से ही रिस्टोर कर सकते हैं उस फाइल को और यूज़ कर सकते हैं। तो रिसाइकिल बिन में से जब आप रिस्टोर करेंगे तो वापस से वो उसी लोकेशन पे पहुंच जाएगी फ़ाइल जहां से आपने डिलीट किया है फ़ाइल को। तो इस तरीके से ये जो यूटिलिटीज़ हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इंस्टॉल होती हैं। और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि हमें अलग से इंस्टॉल करने पड़ते हैं सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम द वायरस सच एज माल फंक्शंस, स्पैम, ट्रोजन हॉर्स, zombies, worms. So these are many virus and antivirus protected from the वायरस। कौन कौन से एंटीवायरस हैं? क्विकहील है, कैस्परस्काई है, गार्जियन है, मैककैफे है। तो देयर आर सो मैनी एंटीवायरसेस विच प्रोटेक्ट योर फाइल फ्रॉम द वायरस। डिस्क क्लीनर टूल क्या होता है? डिस्क क्लीनर टूल बेसिकली डिस्क स्पेस को फ्री करता है ऑन योर कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, और ये आपको मोबाइल में भी, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इंस्टॉल किया हुआ दिखता है, जिसके थ्रू आप डिस्क को क्लीन कर सकते हैं या जंक फाइल जो होती हैं वो उससे डिस्क को क्लीन कर सकते हैं, जंक फाइल को रिमूव करके स्पेस को फ्री कर सकते हैं। अनदर टूल इज़ डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर।
कंप्रेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, बेसिकली फ़ाइल के साइज़ को रिड्यूस कर देता है, कंप्रेस कर देता है, सो दैट इंफॉर्मेशन तो आपको वही मिलती है बट जो स्पेस है वो मैनेज हो जाता है दिस कंप्रेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू. मीन्स इट कंप्रेस द फाइल्स एंड स्पेस कैन बी यूटिलाइज्ड. अनदर इज़ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज़ बैकअप सॉफ्टवेयर. तो बैकअप सॉफ्टवेयर आप जानते हैं कि जब भी आपको की कुछ फाइल्स हैं आपको डिलीट करनी है तो आप सबसे पहले उसका बैकअप बनाते हैं, यानी कि इन फ्यूचर अगर आपको वो फ़ाइल की ज़रूरत पड़ जाए तो आपको वापस से उसको रीस्टोर कर सकें. तो बैकअप सॉफ्टवेयर बेसिकली यूज़ होता है बैकअप बनाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में, सो दैट इन फ्यूचर यू कैन यूज़ और रिस्टोर द deleted file. Another system software is language translator. नाम से ही क्लियर है, ट्रांसलेटर मीन्स कुछ ट्रांसलेट करता होगा. अब ये किसे ट्रांसलेट करता है? ये ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में. सोर्स कोड रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट किस में करेगा? ऑब्जेक्ट कोड दैट इज़ इन द computer language that is called machine level language. There are three types of language translator, that is compiler, interpreter and assembler. Compiler क्या करता है? Compiler का काम भी यही है कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करना या हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करना. हाई लेवल लैंग्वेज जो कि प्रोग्रामर के थ्रू प्रोग्राम लिखता है जिसमें, और मशीन लेवल लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है. तो कंपाइलर किस तरीके से ट्रांसलेट करता है? सबसे पहले कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में रीड करता है. जब भी प्रोग्राम कंपाइल होता है तो सारा प्रोग्राम वो लाइन बाय लाइन रीड करता है, सारी लाइंस को एक ही बार में रीड करता है. उसके बाद कन्वर्ट कर देता है किसमें? ऑब्जेक्ट कोड में. ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के बाद अब वो कंप्यूटर के थ्रू अंडरस्टैंडेबल कोड बन गया है, यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है. अब सिस्टम एग्जीक्यूट करता है दैट प्रोग्राम. सो अगर कहीं पे सिंटैक्टिकली एरर है या सिमेंटिक्स एरर है तो कंपाइलर विल डिटेक्ट द एरर एंड शो वेयर इज़ द एरर. सो कंपाइलर वंस ट्रांसलेटेड देन कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगेन. जब एक बार सोर्स कोड मशीन कोड में ट्रांसलेट हो जाता है तो फिर कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है. व्हाट इज़ इंटरप्रेटर? तो इंटरप्रेटर भी ट्रांसलेट करता है मशीन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में. अब ये कैसे ट्रांसलेट करता है? सबसे पहले ये एक लाइन को रीड करता है इंस्टेड ऑफ द होल सोर्स कोड. तो ये पूरे प्रोग्राम को प्रोग्राम या सोर्स कोड को रीड नहीं करता, बल्कि एक लाइन को रीड करा और किसे भेज दे और किस में कन्वर्ट कर दिया? मशीन लेवल लैंग्वेज में या ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर दिया. इसके बाद दूसरी लाइन को रीड करा, मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज कर दिया. तीसरी लाइन को रीड करा, सोर्स कोड मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज कर दिया एंड सो ऑन. इस तरीके से लाइन बाय लाइन रीड करता जाता है और मशीन लेवल लैंग्वेज में जो हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता जाता है इंटरप्रेटर. अगर सिंटैक्टिकली करेक्ट है कोड तभी इंटरप्रेटर अनदर लाइन को कन्वर्ट करता है एग्जीक्यूटेबल कोड में. सो इट रिपीट दीज स्टेप्स फॉर ऑल द लाइन्स इन द सोर्स कोड. सो इंटरप्रेटर इज़ ऑलवेज नीडेड व्हेनेवर द सोर्स कोड इज़ कन्वर्टेड इनटू द एग्जीक्यूटेबल कोड. तो यहाँ पे हर बार में इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कंपाइलर में जब एक बार सोर्स कोड एग्जीक्यूटेबल कोड में ट्रांसलेट हो गया तो कंपाइलर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंटरप्रेटर की हर बार में हमें एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करने के लिए नीड होती है.
Now another system software is assembler. assembler क्या करता है, बेसिकली एक ऐसा ट्रांसलेट होता है जो कोड असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है, यानी कि सोर्स कोड इन द असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो ऐसे ट्रांसलेटर को हम क्या कहते हैं, असेंबलर कहते हैं। असेंबलर मीन्स दैट ट्रांसलेट द सोर्स कोड रिटन इन द असेंबली लैंग्वेज टू द मशीन लेवल लैंग्वेज, that is called assembler. Now another system software is device driver. तो डिवाइस ड्राइवर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन द हार्डवेयर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो डिवाइस ड्राइवर के थ्रू इंटरेक्शन पॉसिबल हो पाता है एक हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। कुछ डिवाइस ड्राइवर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका कार्ड रीडर हो गया, साउंड कार्ड हो गया, मॉडेम हो गया, नेटवर्क कार्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, यूएसबी डिवाइस हो गई। तो ये सारे डिवाइस ड्राइवर हैं जिनको हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है किसी भी हार्डवेयर की फंक्शनैलिटी के बारे में जानने के लिए। अगर ये डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता कि कौन से हार्डवेयर की क्या फंक्शनैलिटी है। तो किसी भी हार्डवेयर को यूज़ करने से पहले आपके ऑपरेटिंग कंप्यूटर में डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी फंक्शनैलिटी के बारे में नोन हो। दिस इज़ द hardware and this is a device driver and this is the operating system. अगर हम इसको निकाल दें डिवाइस ड्राइवर को तो these ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। तो डिवाइस ड्राइवर प्लेज अ मेजर रोल for communication between hardware and operating system. For example, अगर मुझे प्रिंटर यूज़ करना है या प्रिंटर अटैच करना है अपने कंप्यूटर से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताना पड़ेगा कि ये डिवाइस है क्या। तो इस डिवाइस के बारे में मैं के थ्रू बता पाऊँगी एक ऐसा सॉफ्टवेयर दैट इज़ कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर, यानी कि प्रिंटर मशीन का डिवाइस ड्राइवर मैं इस कंप्यूटर में इंस्टॉल करूँगी सो दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एबल टू नो व्हाट इज़ प्रिंटर, राइट। तो भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंट कमांड को एग्जीक्यूट कर पाएगा, अदरवाइज इट विल जनरेट एन एरर। जब भी हम कोई भी हार्डवेयर अटैच करते हैं या कोई भी हार्डवेयर मार्केट में लेने जाते हैं तो या तो उसकी सीडी हमें मिलती है, डिवाइस ड्राइवर की सीडी मिलती है कि इस तरीके से आपको डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना है और ये डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना है, इस हार्डवेयर का डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना है, या फिर आपको एक बुकलेट मिलेगी जिसमें ये लिखा होगा कि इंटरनेट से किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड करना है डिवाइस ड्राइवर को। अगर ये भी नहीं मिलता है तो ये हो सकता है कि जो हार्डवेयर अटैच्ड है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से उसका डिवाइस ड्राइवर पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम के पास हो, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में लोडेड हो। तो 3 तरीके से हमें डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाते हैं, या तो सीडी की फॉर्म में, या इंटरनेट से डाउनलोडिंग की फॉर्म में, या ऑपरेटिंग सिस्टम के पास इंस्टॉल होने की फॉर्म में। तो ये है डिवाइस ड्राइवर की फंक्शनिंग।
another category of the software is application software. Application software is basically divided into two parts. First one is general purpose software and second one is specific customized software. So general purpose software क्या होते हैं? It is used to perform a broad varieties of tasks. Means it is a ready-made software that can be used by the end user as per as their requirement. What are the example of the general purpose software? That is Adobe Photoshop, which is used for editing the photo, Mozilla web browser, Google Chrome web browser, which is used for interacting with the internet, MS Office में कई सारे एप्लीकेशंस हैं जैसे MS Word, MS Access, MS PPT, MS Excel, VLC Media Player is also a general purpose software. Photoshop, Skype is used for video conferencing. So these are the software that is general purpose software. Another classification is customized software. Customized software are those that perform some specific task. So software that are developed to meet the requirement of a specific organization or individual, that software are called customized software. So example जैसे online exam system are the customized software. Hospital management system is a customized software. School management system is a customized software. और अगर हम कहें गेमिंग एप्लीकेशन, तो गेमिंग एप्लीकेशन भी कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म हो रही है, एक सिंपल गेम. जैसे अगर चेस कहें गेमिंग एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक टास्क है, दैट इज़ प्ले अ चेस. तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्रीली अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन उनका सोर्स कोड हमें नहीं मिलता है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम फ्रीवेयर कहते हैं. और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हमें परचेज़ करना पड़ता है, उनका कॉपीराइट भी हमें मिलता है, लाइसेंस्ड हमें मिलता है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं. जैसे MS विंडो हो गया, ये एक प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर है. टैली हो गया, ये भी प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर है, इसका लाइसेंस भी हमें परचेज़ करना पड़ता है. क्विक हिल है, इसका भी लाइसेंस हमें परचेज़ करना पड़ता है. तो दीज आर सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर. तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ सेशन. अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या आपने कुछ नॉलेज को गेन किया हो इस वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.